Hello everybody, welcome to PCA. Today in this lecture we are going to discuss Vice President. In the previous lecture we have discussed about the President of India, how he is elected, what are his functions, and what are his different powers. Today in this lecture we are going to discuss about Vice President. Vice President में हम क्या पढ़ने वाले हैं, how he is elected, कौन कौन से लोग उसके electoral college में है, is he elected directly or indirectly, and what is the electoral system used in his election, whether it is proportional representation or first past the post system. We will discuss all these things, and plus we will also come to know the powers and functions of the Vice President. So before we start the topic, you have to remember few things. That is, जैसे मैंने आपको president के when we were discussing president, I have told you that who was the first president of India, ठीक है, वो याद रखना, and who is incumbent, ठीक है. जैसे पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आज का है रामनाथ कोविंद, ठीक है. एंड यू हैव टू आल्सो लुक एट इफ देयर इज एनी वुमेन प्रेसिडेंट. फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल. तो एज फार एज द वाइस प्रेसिडेंट इज कंसर्न्ड, और इंडिया का पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो था एस राधाकृष्णन. एस राधाकृष्णन. और आज का कौन है, हु इज द इनकम्बेंट और हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेंकैया नायडू. हाँ, तो now let us see how is vice president of India elected, who are the members who vote in his election. So vice president of India, like that of president of India, is elected in an indirect way, is elected by the method of indirect election, ठीक है. Indirect election. So ये क्लियर होगा आपको कि इसमें डायरेक्ट जो कॉमन लोग हैं, कॉमन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते, बल्कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वोट डालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है. एंड so vice president of India is elected by the method of indirect election, in which the representatives of the people vote. And how he is elected? He is elected by the electoral college, ठीक है. Electoral college. जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, और यहाँ पे भी वाइस प्रेसिडेंट में भी एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है. बट यहाँ पे एक वेरिएशन है, इसमें एक डिफरेंस है. वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो डिफरेंट है देन दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है. डिफरेंट इन द सेंस कि मेंबर्स इसमें डिफरेंट तरह के होते हैं. तो इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, it consists of both elected as well as nominated members of both the houses of parliament. हाँ,
electoral college for the election of the vice president consists of elected as well as nominated members of the parliament, or you can say all the members of पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउसेज है, लोकसभा के भी सारे मेंबर्स इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी, और राज्यसभा के भी सारे मेंबर्स इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी। Now let us see what is the electoral system used in his election. The vice president of India, like that of the president, is also elected by proportional representation with single transferable vote। इसमें भी यही इलेक्टोरल सिस्टम यूज होता है, proportional representation by means of single transferable vote। जहां पे वायर वी हैव टू डिराइव कोटा हम कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। यहां पे है हमें एक ही वाइस प्रेसिडेंट चुनना है, तो हम लिखेंगे 1 + 1 और +1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स +1, ठीक है, क्योंकि यहां पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्ट जो हमें करने हैं वो, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट एक ही होता है। सो as far as the vice president of India is concerned, he is elected like that of president by the method of indirect election, and he is elected by the electoral college। और उस electoral college में कौन कौन से members होते हैं? elected as well as nominated members of both the houses of parliament। क्योंकि हमारा जो parliament है, especially आज राज्यसभा में elected members भी है, nominated members भी है, ठीक है। लोकसभा में खाली अब elected members ही है। तो दोनों, चाहे elected member हो या nominated member हो, लोकसभा का या राज्यसभा का, दोनों इसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो हम इलेक्टोरल सिस्टम यूज करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल लोकसभा के मेंबर को इलेक्ट करना होगा, वहां पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। बट इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट वी यूज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ आई हैव टोल्ड यू there is the difference between electoral college of the vice president and electoral college of the president. We will try to see what is the difference. Electoral college of president or electoral college, sorry, हाँ, if you recall when we were discussing president, मैंने आपको कहा कि in the president's in the electoral college which is framed to elect the president, उसमें कौन कौन से members होते हैं? 3 किस्म के members होते हैं। एक elected members of both the houses of parliament, ठीक है। उसके बाद elected members of स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जे&के। जो ये मेंबर्स होते हैं, they together formed the electoral college to elect the president. और अगर हम वाइस प्रेसिडेंट का देखेंगे, who are the people who constitute
इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इसमें आते हैं नॉमिनेटेड एज वेल एज elected. हाँ, as far as the इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंसर्न, उसमें आते हैं, उसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? खाली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और यू कैन से इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा के भी राज्यसभा का भी, लेकिन इलेक्टेड ही। और उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेचर में लोअर हाउस होता है, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। इसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, दे आर यूटीज विद लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, विद लेजिस्लेचर। तो इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स है, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। बट इफ वी सी द इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वी सी ओनली नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो नॉमिनेटेड, फॉर एग्जांपल राज्यसभा में है अभी 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दे आर नॉट अथोराइज्ड टू वोट, ठीक है, वो वहां पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते, बट दोज 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें एक्सक्लूड कौन हो जाते हैं? स्टेट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई भी मेंबर यहां पे वोट नहीं डाल सकता वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है यूटीज में, फॉर एग्जांपल दिल्ली में है, पुडुचेरी में है और जम्मू एंड कश्मीर में जो बनेगी, वहां के जो भी मेंबर्स होंगे यूटी के लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जस्टिफिकेशन इस तरीके से दिया कि उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो अथॉरिटी, उसका जो पावर, वो दैट इज अक्रॉस, वो सेंटर में भी होता है और प्लस स्टेट्स में भी होता है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम है, he is ex officio chairman of the राज्यसभा, ठीक है, वो he acts as a chairman of the राज्यसभा, तो his power does not extend to the states, ठीक है। that is why डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि so there is no need to bring the members of the legislative assemblies or to entitle the members of the legislative assemblies to cast their vote in the vice president's election, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट एंड इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। हाँ, बट बिफोर contesting the election of vice president, a candidate has to fulfill, there are certain qualifications, ठीक है। क्वालिफिकेशंस, कंडीशंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में कहा कि अ पर्सन कंटेस्टिंग फॉर इट और आस्पायरिंग टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उसकी ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट के केस में है, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। इसी तरीके से लाइक दैट प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में क्वालिफिकेशन है कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में यहां पे ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। प्लस अदर्स आते हैं, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करने हैं। तो दीज आर मेनली 3 क्वालिफिकेशंस, ठीक है। और इसी तरीके से वंस द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, ही हैज टू सब्सक्राइब एन ओथ, ठीक है,
हैज टू अफर्म द ओथ, ठीक है, एंड ओथ में उसको ही हैज टू स्टेट दैट he is having allegiance with the Constitution of India, ठीक है, and he will do all his acts as per the Constitution of India, ठीक है, जैसे हलफनामा मतलब हलफ उसको उठाना होगा, ठीक है, he will do everything as per the Constitution of India, he will uphold the Constitution, he will uphold integrity and unity of India। तो ये oath और टर्म जो होती है वाइस प्रेसिडेंट की होती है 5 years। वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसका टीनियर है 5 years, ठीक है, 5 years। बट बिफोर द फुल टीनियर a person as a vice president can be removed, ठीक है, उसको रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है, he can be removed। और रिमूवल के लिए क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्पीचमेंट। अगर द प्रोसेस थ्रू विच ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड उसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट। लेकिन ए प्रोसेस as far as the vice president is concerned, if the parliament wants to remove him or especially the Rajya Sabha wants to remove the vice president, तो उसके लिए impeachment की जरूरत नहीं है, उसमें आपको एक resolution पास करना होगा, ठीक है। हाँ, प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट को एक प्रोसेस के थ्रू हटाया जा सकता है, उसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट। बट इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यू डू नॉट नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यू कैन जस्ट ब्रिंग ए रिजोल्यूशन, ठीक है। और ये अभी हम देखते हैं इस रिजोल्यूशन में क्या क्या चीजें हैं। ये जो रिजोल्यूशन है, सिंस वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ही acts as an ex officio chairman of the Rajya Sabha, तो ये जो रिजोल्यूशन होता है it can only be introduced in the Rajya Sabha। हाँ, जैसे अगर आपको मालूम है मुनी बिल जो होती है, टाइप्स ऑफ बिल्स हम आगे पढ़ने वाले, मुनी बिल जो होती है, मुनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। इस तरीके से a resolution to remove the vice president can only be introduced in Rajya Sabha, and before moving this resolution you have to give a 14 days advance notice, 14 days advance notice to the vice president। अब हमें देखना है कि ये प्रोसेस कैसे होगी, ठीक है। देखिए, the resolution to remove the vice president, it must be passed with a simple majority in Rajya Sabha, ठीक है, simple majority in Rajya Sabha, and it must and should be agreed by the Lok Sabha, ठीक है। This is a process through which a vice president can be removed, ठीक है। तो एक resolution, you have to present a resolution, you have to bring a resolution, and you have to provide a 14 days notice to the vice president, ठीक है। और ये resolution हम कहाँ पे, where can this be introduced? It can be only introduced in Rajya Sabha, ठीक है। It cannot be introduced in Lok Sabha। Now let us see the powers and functions of the vice president. Powers and functions. वाइस प्रेसिडेंट जो है इसका रैंक होता है नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द कंट्री। देखिए, कंट्री में सबसे हाईएस्ट ऑफिस जो है वो है प्रेसिडेंट का, उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है।
So he occupies the second highest office in the country. So as far as his powers are concerned, he acts as an ex officio chairman of Rajya Sabha. Mind this, in both the houses of parliament, Lok Sabha में भी राज्य सभा में भी, there are presiding officers. ठीक है, there are basically the persons who preside over the sessions. लोकसभा में अगर आप देखोगे वहां पे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. इसी तरीके से जो राज्यसभा है अपर हाउस, यहां पे है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन. तो वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम है? वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, ही एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, एंड इन दिस कैपेसिटी ही हैज सिमिलर पावर्स टू दोज ऑफ स्पीकर. जैसे स्पीकर के पास पावर्स होते हैं, ठीक है, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस. ठीक है, और इसी तरीके से चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट असल में होता है. ठीक है, लेकिन एक्ट करता है एज एक्स ऑफिशियो बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस. ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस ही एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड एंजॉयज all those powers which are like those enjoyed by the speaker. ठीक है, लेकिन इसमें वेरिएशन है, स्पीकर के अलग अलग से फिर पावर्स है, बट पोजीशन सेम है. ठीक है, स्टेटस सेम है. दूसरा, when the office of the president falls vacant, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो गई, प्रेसिडेंट ने अगर रिजाइन किया है, या प्रेसिडेंट इज बेसिकली इल फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो वहां पे हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट. सो यू कैन, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट वेकेंट हो सकता है ड्यू टू रिजाइन बाय द प्रेसिडेंट और डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, और इन केस द प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस. ठीक है, फॉर एग्जांपल इल है या कहीं पे गया हुआ है. ठीक है, सो यू नीड समबॉडी, you cannot keep this post vacant. ठीक है, you cannot keep this office vacant because president जो होता है he is head of the state. ठीक है, वो एक representative position पे होता है, एक symbolic position पे होता है. we cannot afford to keep this office vacant. बट वाइस प्रेसिडेंट जब एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट, इसका मैक्सिमम हो सकता है 6 months के लिए. ठीक है, 6 months, for maximum 6 months, because within 6 months you have to elect a new president. ठीक है, you have to go through the process to elect a new president. So vice president act कर सकता है, vice president act कर सकता है as president जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होगा, ड्यू टू रिजाइन, ड्यू टू डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, और इन केस द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस. ठीक है, तो वहां पे कौन करेगा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम? वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एट द टाइम एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट. और नाउ लेट अस सी कि कहीं पे ये क्या, इफ देयर आर any such instances wherein the vice president of India acted as president. Yes, there are such instances. ऐसे हमें मिसालें मिलती है जहां पे वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट किया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन, व्हेन प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, तो वहां पे किसने फिर उन दिनों के लिए एक्ट किया एज प्रेसिडेंट? वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी। इन द सेम वे when the then president of India Fakhruddin Ali Ahmad died in the office, तो उसके बाद किसने एक्ट किया एज प्रेसिडेंट? बीडी जाति, बीडी जाति, ठीक है, बिकॉज सिर्फ When डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, वीवी गिरी उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट था, ठीक है। नाउ प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो गया, तो वीवी गिरी एक्टेड एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसी तरीके से व्हेन फखरुद्दीन अली अहमद डाइड एंड एट द टाइम बीडी जेटी वाज अ वाइस प्रेसिडेंट, देन ही एक्टेड एज अ वाइस president, then he occupied the president till the new president was elected. इसी तरीके से when the first president of India Dr. Rajendra Prasad, he was ill, he was basically, yes, he was ill, but at the same time he was on a tour to USSR, erstwhile USSR, present day रशिया में वो टूर पे था, बट वो इल उसकी हेल्थ कंडीशंस भी डिटोरेट हो चुकी थी उस वक्त। 1961 की मैं बात कर रहा हूँ। तो देन सिंस ही वाज ऑन अ टूर फॉर 15 डेज, तो उन 15 डेज के लिए किसने एक्ट किया है एज प्रेसिडेंट? एस राधा कृष्णन नहीं, ठीक है, एस राधा कृष्णन। देखिए ये तीनों उस अपने अपने समय पे वाइस प्रेसिडेंट थे, बट जहां पे व्हेन देयर वाज अ वैकेंसी, ठीक है, और व्हेन द प्रेसिडेंट वाज नॉट इन अ पोजीशन टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस, तो दीज वाइस प्रेसिडेंट एक्टेड एज प्रेसिडेंट, ठीक है। और इन केस वाइस प्रेसिडेंट भी अगर अवेलेबल नहीं होगा या ड्यू टू एनी अदर रीजन, तो फिर करता है सुप्रीम कोर्ट का जज, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऐसे भी इंस्टेंसेस है। नाउ आपके क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन होगा कि वाइस प्रेसिडेंट का अगर इतना अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का, तो सैलरी क्या होगी? माय डियर्स, प्रेजेंटली सैलरी है वाइस प्रेसिडेंट टेक्स 4 लाख, ठीक है, 4 लाख पर मंथ, ठीक है। टिल 2018 ये था 1.25 लाख पर मंथ, ठीक है। बट 2018 में शाबाश, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड द सैलरीज अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट? शाबाश, मैंने आपको कल कहा, पिछले लेक्चर में कहा कि इट इज द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड द सैलरीज अलाउंसेस फैसिलिटीज एमुलेमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से टिल 2018 वाइस प्रेसिडेंट यूज्ड टू गेट 1.25 लाख पर मंथ एज ए सैलरी, एंड देन पार्लियामेंट increased it and made it 4 lakh per month. So before closing today's lecture, let's recall what we have done so far. एक हमने पढ़ा है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, हाउ ही इज इलेक्टेड, व्हाट इज द मेथड यूज, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, और इलेक्टोरल सिस्टम यूज होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, या यू कैन से सारे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, सारे मेंबर्स, सारे इन द सेंस नॉमिनेटेड भी इलेक्टेड भी, और प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में होते हैं खाली इलेक्टेड। Then we came to know कि qualifications क्या है, वो 35 years age, he must be a citizen of India or he should be qualified